नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निक्षय धीमान। नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट जो है वो 2022-23 का बजट पेश किया है। इस बजट से युवाओं, टैक्स पेयर्स को और साथ ही साथ देश की जो आम जनता है उन्हें भी काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो बढ़ रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी की जो अभी लेकर बिहार में और प्रयागराज में प्रदर्शन हुआ था, उसमें भी सरकार को खासा चिंता हुई हो, क्योंकि बेरोजगारी जो है वो सरकार को घेरने का एक बहुत ही अहम मुद्दा है। क्योंकि इस सरकार से जो लोगों को शिकायत है वो यही है कि सरकार रोजगार बिल्कुल भी नहीं दे रही है। ये जो बजट है ये कितना खास होने वाला है ये हम जानेंगे कुछ ही देर में। निर्मला सीतारमण जो है वो देश की ऐसी पहली वित्त मंत्री हैं जो अपना चौथा बजट इस बार संसद में पेश कर रही हैं, और उनके बजट की खास बात हर बार रहती है। जैसे कि पिछली बार जो उनका बजट था उसकी खास बात ये थी कि उन्होंने सबसे लंबा भाषण देकर बजट पेश किया था, और आज का जो बजट है वो पेपरलेस होने वाला है। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया, कल 31 जनवरी को निर्मला सीतारमण ने संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया, जिसमें बताया कि देश की जो जीडीपी है वो 2022-23 में 9 से लेकर 9.5% तक बढ़ोतरी होगी, जिसमें देश की आम जनता को और मोदी सरकार को भी राहत मिली है। तो आइए जानते हैं आज के बजट की कुछ खास बातें। Throughout the year, with the Honorable Prime Minister guiding the implementation, our economic recovery is continuing to benefit from the multiplier effect. This budget continues to provide impetus for growth. It lays a parallel track of 1. A blueprint for the Amrit Kal, which is futuristic and inclusive. This will directly benefit our youth, women, farmers, the scheduled castes and the scheduled tribes. And number 2, big public investment. Number 2, big public investment for modern infrastructure, readying for India at 100. This shall be guided by PM Gati Shakti and be benefited by the synergy of multimodal approach. Moving forward on this parallel track, we lay the following 4 priorities: PM Gati Shakti, inclusive development, productivity enhancement and investment, sunrise opportunities, energy transition and climate action, and 4, financing of investments. PM Gati Shakti. PM Gati Shakti is a transformative approach for economic growth and sustainable development. The approach is driven by 7 engines, namely roads, railways, airports, ports, mass transport, waterways, and logistics infrastructure. All 7 engines will pull forward the economy in unison. These engines are supported by the complementary roles of energy transmission, IT communication, bulk water and sewerage, and social infrastructure. Finally, the approach is powered by clean energy and Sabka Prayas. The efforts of the central government, the state governments, and the private sector together, leading to a huge job and entrepreneurial opportunities for all, especially the youth. PM Gati Shakti Master Plan, National Master Plan. The scope of PM Gati Shakti National Master Plan will encompass the 7 engines for economic transformation, seamless multimodal connectivity, and logistics efficiency. It will also include the infrastructure development by the state governments as per Gati Shakti Master Plan. The focus will be on planning, financing, including through innovative ways, use of technology, and speedier implementation. The projects pertaining to these 7 engines in the national infrastructure pipeline will be aligned with PM Gati Shakti framework.
तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट संसद में पेश किया और उस बजट की जो महत्वपूर्ण बातें रही वो कुछ ये रही कि रोजगार के लिए जो एक अहम मुद्दा है, रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष लगातार ही सरकार को घेरती है और अगर युवाओं में देखें हम और जनता में देखें तो उनमें भी रोजगार को लेकर सरकार को देखते हुए सरकार के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा निराश जो है वो जनता है। तो रोजगार को लेकर यहाँ पे कहा गया कि एमएसएमई सेक्टर जो है उसको मजबूत किया जाएगा, उसमें सरकार जो है कुछ पैसे आवंटित करेगी उसके लिए और साथ ही साथ जो पीएलआई स्कीम है, पीएलआई स्कीम के तहत पहले भी युवाओं को नौकरियां मिली हैं और इस बार भी अगले आने वाले 5 साल में 60 लाख नौकरियां देने की सरकार की योजना है। शिक्षा जो है, शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि कोरोना का जो काल है, कोरोना काल में शिक्षा पर बहुत ज़्यादा रोक लगी है, जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन हो गई है और उसमें भी कुछ जो जनता है, आम जनता है, उसका सवाल ये था कि जिसके घर में एक ही स्मार्टफोन है या जिसके घर में स्मार्टफोन है ही नहीं वो ऑनलाइन क्लास कैसे ले। तो यहाँ पर सरकार ने वन स्टडी वन टीवी चैनल के नाम से एक चैनल लॉन्च किया है जिसे आप कहीं से भी देख सकते हैं और इसी के साथ डिजिटल जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना होगी जिससे कि जो भारतीय विद्यार्थी हैं उनको वर्ल्ड क्लास का जो लेवल है वहाँ की शिक्षा मिलेगी। और साथ ही साथ अगर हम देखें कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए सरकार ने कहा कि हर साल 25,000 किलोमीटर से अधिक हाईवे बनेंगे और वंदे भारत जो योजना है उसके तहत 400 ट्रेनें उनका निर्माण होगा और साथ ही साथ 100 कार्गो टर्मिनल का निर्माण भी सरकार ने करने की योजना बनाई है। अगर हम देखें कि इनकम टैक्स, तो यहाँ पे सरकार जो है काफ़ी, हम कह सकते हैं कि काफ़ी कम काम कर रही है, क्योंकि इनकम टैक्स में पिछले लगभग 5-6 सालों से कोई भी राहत नहीं मिली है। हालांकि इस बार जो टैक्स पेयर हैं उनके लिए 2 साल की अवधि उसको बढ़ा दिया गया है और क्रिप्टो करेंसी पर भी 30% अब इनकम टैक्स लगेगा। यहीं इसी के साथ साथ जो उज्ज्वला योजना पीएम मोदी की है, उज्ज्वला योजना को अब 1 करोड़ और घरों तक पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख मकान अब बनेंगे और एक जो सरकार की योजना है हर घर में जो नल देने की योजना सरकार की है उसके तहत हर घर में अब पानी जाएगा। उसके लिए जो बजट है वो 68,000 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने उसके लिए निर्धारण किया है। साथ ही साथ जो रक्षा है, रक्षा में इस बार हम देखते हैं कि बाहर से जो विमान आते हैं, बाहर से हथियार आते हैं, उसके लिए भी सरकार ने काम किया कि रक्षा में जो है इस बार आत्मनिर्भरता आएगी। रक्षा जो हमारा मंत्रालय है उसमें जो हम कह सकते हैं कि विमान हैं, हथियार हैं, वो अब देश में ही बना करेंगे। और साथ ही साथ एक बहुत ही छोटा तबका जो है वो है आंगनवाड़ी का। आंगनवाड़ी को सरकार ने अपग्रेड करने की योजना बनाई है कि जो पुरानी आंगनवाड़ी थी उसके तहत जो सरकार योजनाएं चला रही हैं, राशन की योजना है या जो कुपोषित बच्चों के लिए जो योजना है, गर्भवती महिलाओं के लिए, उनमें भी अब सरकार जो है उन्हें आंगनवाड़ियों को अपग्रेड करेगी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पूर्वांचल देश का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और पूर्वांचल की जो उन्नति के लिए सरकार ने 1500 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। ये थी बजट की कुछ महत्वपूर्ण बातें। एमएसएमई सेक्टर को सरकार ने मजबूत किया है। टैक्स पेयर को जो है वो हालांकि टैक्स पेयर को राहत नहीं मिली है, लेकिन फिर भी टैक्स का जो रिटर्न है उसमें 2 साल की अवधि सरकार ने बढ़ा दी है। इसी के साथ पासपोर्ट भी सरकार ने कहा कि अब से ई पासपोर्ट सबको देना होगा। ई पासपोर्ट की योजना सरकार ने बनाई है और यही कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। इसी के साथ देखना यह होगा कि ये जो बजट है ये आम जनता पर कितना प्रभाव डालता है। तो देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नमस्कार भारत।